We're honored to introduce our next keynote speaker, Mr. Santosh Mishra, Sir, Director, Vashisht Capital Finance Services Private Limited and Vashisht Seva Foundation based in Delhi. Sir is also a life member of All India Management Association. Sir has vast experience of 20 years in the financial services domain like mutual funds, shares, portfolio management, and regular speaker on financial management topics on various forums. May I now request Sir to kindly address the audience. Thank you, Kalra Madam. Thank you, Gurpreet Ji. Thank you, Khurana Sir. Thank you, Day Sir, for inviting me here to share my ideas with all Gen Zs. I'm really very excited to be with you all today. And it's my honor and privilege to speak with you all and share my experience, what I have learned in the last 20 years in my journey of financial services. यहाँ पे Mr. Idris spoke very well. And Tukral sir also speak very well. And since the morning, all these speakers are speaking on various topics and explaining you all, you Gen Zs, how to do how to move ahead in your profession, how to conduct yourself, to learn new things in this world, so that you can be a successful professional in coming years. What I would like to share with you all, that what not to do Gen Zs nowadays. Gen Zs are very impatient. जो मैं समझ पा रहा हूँ, what I understood in the last 22 years in my business, whenever I'm interacting with the young people, they are very impatient. They are unable to listen any senior person, their experienced person. They think that these ideas are the outdated. In that case, if you will not have patience to understand, you will not extend your time spent to understand the subject, then you will not achieve a lot of things in your life. This institution, Mr. Idris told that this institution is 37 years old. This institution is 37 years old because of some good things. If there will not be any good things, then you cannot continue your legacy of the institution, your practices and all these things. मैं आप लोगों को जो एग्जैक्टली बताना चाहता हूँ अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे, कि मेरी जो कंपनी है वो फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करती है पिछले 20 सालों से, और यहाँ पे हमने लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में लोगों को हम यहाँ पे समझाते हैं, और शेयर मार्केट में आप कैसे इन्वेस्ट करें, जो जेन जीज का आजकल एक फेवरेट टॉपिक है. मुझे लगता है कि आप लोग सब लोग म्यूचुअल फंड या शेयर्स के बारे में जानते हैं. क्या आप लोग इन्वेस्ट भी करते हैं? क्या आप लोग इंस्टाग्राम पे भी कुछ या यूट्यूब चैनल पे ढेर सारे आइडियाज़ आप लोग सुनते हैं? तो क्या आप लोगों के मन में आता है? क्या आप लोगों को क्विक बक्स की जल्दी से जल्दी पैसा बन जाए, ऐसी फीलिंग आती है? तो यही फीलिंग नहीं आनी चाहिए. राइट. तो यही फीलिंग आप लोगों को नहीं आनी चाहिए. यदि आपके मन में ऐसा कुछ भी आता है कि आज मैं इन्वेस्ट करूंगा और 2-4 महीने बाद या अगले 1 वीक में काफ़ी पैसा डबल हो जाएगा, तो वो आइडिया नहीं आना चाहिए. तो यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस, कि एज ए जेन जीज आप लोगों को अपने आप को इन सब चीज़ों से डिसिस्ट करना है. यदि आप ऐसा डिसिस्ट नहीं करेंगे, कभी भी यदि ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं एम्प्लॉय करता हूँ लोगों को, तो जेन जीज को जब एम्प्लॉय करता हूँ तो जेन जीज का एक ही मोटिवेशन होता है कि सर पैसे कितने मिलेंगे. तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि बी डिजर्व देन डिजायर. तो जब तक आप अपनी एप्टीट्यूड को, अपनी एबिलिटी को, अपने आप को प्रूव नहीं करते और उसके पहले ही आप डिमांड करते कि मेरी वैल्यू आप करो, तो जेन जीज को इससे अवॉइड करना है. पहले आपको हार्ड वर्क करके अपने आप को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी इंपॉर्टेंस को बताना है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ. यदि आप कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते और सब कुछ पाना चाहते, तो यू विल बी अल्टीमेटली ए फेलियर. और इसके बाद मैं दूसरी बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी कुछ काम करें तो आप एथिक्स बेस्ड काम करें. हम लोग आई एम एंटरप्रेन्योर, और एंटरप्रेन्योर का मतलब ही होता है अपनी चीज़ को सेल करना. लेकिन यदि हमारी सेलिंग यदि एथिकल नहीं होगी, रिलेशनशिप ओरिएंटेड नहीं होगी, और ऐसी कोई चीज़ यदि हम सेल करने में नहीं कामयाब होते जो सस्टेन करे,
तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हम दोबारा अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएंगे। एक बारी तो हम अपने किसी कस्टमर के पास पहुंच जाएंगे, अपनी बात उन तक पहुंचा देंगे, लेकिन दोबारा वो हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो भी चीज़ की हम प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें, जिन चीज़ को, वो सस्टेनेबल होना चाहिए। यदि हमारा रिलेशनशिप सस्टेन नहीं करेगा हमारे कस्टमर के साथ, हमारा प्रोडक्ट इतना ड्यूरेबल नहीं होगा, तो हमें दोबारा ऑर्डर नहीं मिलेगा और दोबारा हमें नहीं बुलाया जाएगा। फिर जिंजीज के सामने एक बहुत बड़ा दूसरा जो चैलेंज है कि उनको ये जितने भी सेमिनार्स हुए, जो टॉपिक भी मैंने पढ़ा, वहाँ पे एक चीज़ मिसिंग मुझे जो लगी कि हमें ये बताने की कोशिश नहीं की जा रही कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन के जो फेलियर्स होते हैं, सक्सेस स्टोरीज तो आप लोगों ने बहुत ही ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा होगा, ऑर्गेनाइजेशन फेल कैसे होते हैं और उन सब चीज़ों को हमें कैसे बचाना है। तो हमें फेलियर स्टोरीज भी पढ़नी है और वो सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है जो ऑर्गेनाइजेशन को फेल होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जनरली कोई चीज़ आप बता सकते हैं, मैं थोड़ा इंटरेक्टिव इसको बनाना चाहूँगा स्टूडेंट्स के साथ कि इस साइड के लोग बता सकते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो फेल होते हैं क्या रीज़न होता है। आप लोग कुछ केस स्टडीज़ आपने स्टडी किया होगा जहाँ पे आप लोग ये बताना चाहें कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो फेल होते हैं उनके क्या रीजंस होते हैं। ये सब चीज़ों को सर हम मान सकते हैं कि कंपनी का फेलियर इसमें हो सकता है। ओके, तो आप अपना नाम बताएं। रोहित शर्मा जी, तो रोहित ने बताया कि यदि आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फेलियर की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाएंगी। यस, दिस इज़ वेरी ट्रू। यदि हम जो फ्यूचर ट्रेंड्स जो टेक्नोलॉजी के हैं, यदि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट नहीं करेगा तो उसके फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। राइट। और कोई रीज़न बताएं। यस प्लीज़। आई एम अदिति। ओके, जैसा अभी रोहित ने बोला कि टेक्नोलॉजी जो है वो तो हमें एडेप्ट करना ही चाहिए अपने फॉर्म्स में, साथ ही हमें सर टू वे कम्युनिकेशन हमेशा रखना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हमारे फॉर्म्स में, सो डैट कि हम एक जो ट्रस्ट है अपने कंज्यूमर्स का वो बिल्ड कर सके। अगर हम अपने फॉर्म्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम लैग कर जाते हैं और जो हमारे कंज्यूमर्स हैं हम उनका जो ट्रस्ट है वो बिल्ड नहीं कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट रीज़न है जो फेल्योर फेस करवा सकता है या करवाता भी है। yes, this is very important point C narrated कि trust is ultimate thing. If we will not able to earn the trust of the consumer, then certainly we are going, as a organization we are going to fail. For making a trust we have to make a durable product. If we do not have durable product, trustworthy product, certainly we are going to fail. But okay, very good, thank you. Any other person, any other one can, yes please. प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ वो मैटर मींस Okay, strategic decision. I mean your strategic decision should be futuristic and you have to manage a profit cost. बिजनेस एनालिसिस के थ्रू हमें प्रॉपर फ्यूचर प्रेडिक्शंस करनी है चाहिए एंड उसी हिसाब से हमें अपने डिसीजन लेनी चाहिए, ताकि फॉर एग्जांपल जैसे इलॉन मस्क है, स्पेसएक्स लाइक पूरी डूब चुकी थी कंपनी, वो परचेज करके उन्होंने करा, लाइक उसको रिवाइव, देन उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सो उन्होंने फ्यूचर प्रेडिक्ट करा था। सो बिजनेस एनालिटिक्स करना बहुत ज़रूरी है और ताकि आप एक सही डिसीजन ले सके, अदरवाइज ओला जैसा हाल हो जाता है, डूब जाती है कंपनी। तो सी कंपनी के लाइफ साइकिल में कभी प्रॉफिट का दौर आएगा, कभी लॉसेस का दौर आएगा। वी हैव सीन मेनी साइकिल ऑफ वेरियस कंपनीज जहां पे हमने ये पाया कि कंपनीज कभी लॉस करती हैं, कभी प्रॉफिट करती हैं। होगा कि अब हमेशा आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, कभी लॉस भी हो जाएगा। टाटा मोटर्स को हमने देखा है कि टाटा जगुआर को एक्वायर किया तो उनके लॉसेस काफ़ी हो गए, लेकिन उनके शेयर प्राइस काफ़ी नीचे चला गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने प्रोडक्ट रेंज इतना ऐड किया जिसकी वजह से उनके प्रॉफिट में काफ़ी मैनीफोल्ड जंप आया। तो दीज आर द पार्ट ऑफ द बिजनेस। बट यदि आप कंपनी की लॉन्जिविटी देखेंगे या हिस्ट्री देखेंगे कि जो कंपनी, जैसे टाटा का ही नाम लिया उन्होंने, कि तो आप पाएंगे कि जो कंपनी ज़्यादा एथिकल हैं और जिनका पर्पस सोसाइटी को देने का होता है वो कंपनी ज़्यादा सस्टेन करती हैं। यदि कंपनी सिर्फ प्रॉफिट फोकस्ड होगी कि सिर्फ मुझे ही प्रॉफिट मिलना चाहिए, हम अपने स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो उन कंपनीज की जो लॉन्जिविटी होती है थोड़ी कम हो जाती है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जो जेंजीज हैं वो इस बात पे बिल्कुल फोकस करें कि आप जो भी काम आगे करने चाहें, ठीक है, जिस भी मार्केटिंग में, मीडिया में, इंटरनेट में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, जो भी प्रोफेशन आप ऑप्ट करते हैं, तो वहाँ पे
फ्रॉम द डे वन आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आप वहाँ पे एथिकल प्रैक्टिस फॉलो करेंगे। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए आप एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे। आपका शॉर्ट टर्म फोकस नहीं होना चाहिए। यदि आपका शॉर्ट टर्म फोकस होना चाहिए, आपका फोकस सिर्फ ये होगा कि मुझे सिर्फ अपनी प्रॉफिटेबिलिटी एट एनी कॉस्ट इंक्रीज करनी है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ज़्यादा लॉन्जिविटी नहीं हो सकती। तो ये जिन चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करना है। बाकी जो टेक्नोलॉजी के साथ जो चेंजेस आपको टेक्नोलॉजी के साथ जो अपडेट आपको रखना है, आप अपना प्रोडक्ट इनोवेशन जो जैसे मोबाइल एप्लीकेशन है, तो आजकल जितने जेंजीज हैं उनका जो फोकस है कि वो इंस्टेंट सोल्यूशन उनको चाहिए। यदि आप उनको इंस्टेंट सोल्यूशन नहीं देंगे तो कोई भी ब्रांड सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो इंस्टेंट सस्टेन करने के लिए जैसे मिस्टर इदरीस ने कहा कि हमारी वेबसाइट कितनी फास्ट ओपन होती है, तो आजकल तो सब कुछ मोबाइल में है ना, तो आपके हैंड ही सब कुछ होना चाहिए। यदि मेरा कोई ब्रांड है, यदि मेरी कोई कंपनी है और मैं अपनी कंपनी का प्रोडक्ट आप लोगों तक पहुंचाता हूं, तो आपके पास हैंडी इंफॉर्मेशन सब कुछ होना चाहिए। यदि मोबाइल एप्लीकेशन मेरी कंपनी का नहीं है तो आप मेरी तरफ जिन चीज़ अट्रैक्ट नहीं होंगे। पॉसिबली मेरा प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ड्यूरेबल है, लेकिन मेरे प्रोडक्ट का जो आउटरीच होगा वो इतना ज़्यादा नहीं होगा यदि मैं मोबाइल एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। आज आप जो अभी का जो टाइम चल रहा है, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को दिल्ली में बैठ के या किसी छोटे से शहर में भी बैठ के ग्लोबली अपने प्रोडक्ट को आप उसका आउटरीच बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत ही आपकी फास्ट होनी चाहिए। एक दूसरी चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगेन रिलेटेड टू फाइनेंशियल सर्विसेज। तो आप लोग इंस्टाग्राम, रील, ये सब सारी चीज़ें देखते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनका फाइनेंस में इंटरेस्ट है, जो आगे आप लोग फाइनेंशियल सर्विसेज में जाना चाहेंगे, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जाना चाहेंगे? ओके। तो आप कुछ बता सकते हैं कि इंस्टा पे रिसेंट में आपने क्या देखा, इंस्टाग्राम पे कोई टिप देखी, कोई एडवाइस आप बता सकते हैं, ऐसा क्या देखा आपने? ओके। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी हमें सही चीज़ों से दूर भी करती है। टेक्नोलॉजी ऐसी का हमें तो एक ढेर सारी इन्फॉर्मेशन भी टेक्नोलॉजी देती है, लेकिन बहुत सी ऐसे केसेस में हमें इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आती है, जिससे हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सी चीज़ करेक्ट है, कौन सी चीज़ मुझे करनी है। इन्फॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट इतना ज़्यादा है, तो आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है या ये रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मेरे लिए नहीं है? कोई आइडिया आप लोगों को कि आप कैसे इस बात को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है ये अप्रोप्रिएट मेरे लिए है, मुझे बेनिफिट इससे हो सकता है कि मुझे नहीं बेनिफिट हो सकता? वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? अदिति। अदिति के लिए आप सब लोग क्लैप कीजिए, ठीक है। अदिति ने बहुत ही अच्छा अदिति ने बोला कि हमें इतना प्रोम्प्टली डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि जेनजीज की एक क्वालिटी है कि कोई भी काम करने के पहले वो अच्छे से रिसर्च करते हैं। जेनजीज ऐसे ही किसी चीज पे ट्रस्ट नहीं कर लेते, तो आप अच्छे से रिसर्च करेंगे तब उस इंस्टाग्राम पे जो रील्स चल रही है या जो एडवाइस आ रही है आप उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं, और वो जो ऑथेंटिक चीज़ है वो आपके लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं ये आपको पता करने में अच्छा लगेगा। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि इंस्टेंट यहाँ पे फायदा और इंस्टेंट आपके लॉसेज होते हैं। इंस्टेंट यहाँ पे इंस्टेंट प्रॉफिट है, इंस्टेंट आपको लॉसेज है यहाँ पे। तो आप जो भी किसी का यूट्यूब चैनल है, यदि वो वेरीफाइड नहीं है, सिर्फ कुछ न उनके मन में जो आ रहा है वो बोलते जा रहे हैं। कभी कभी यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे ऐसा भी होता है कि पेड एडवर्टीजमेंट होता है, कि उनको कोई पे करता है। इन्फ्लुएंसर्स वो लोग हैं, तो इन्फ्लुएंसर को पे किया जाता है और पे करके वो कुछ भी चीज़ें बोलते हैं। वो अपनी सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन आपको मोटिवेट करते हैं कि यू डू दैट। तो यू हैव टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स। तो मैंने अपनी बातों को मैं समराइज करना चाहूँगा कि मैंने आप लोगों को ये बताया कि आपको यू हैव टू फॉलो एथिकल वे ऑफ डूइंग द बिजनेस। वट एवर आप लोग फ्यूचर में करेंगे, यू हैव टू फॉलो एथिकल वे ऑफ डूइंग द बिजनेस। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। जब भी आपको जॉब मिले तो बहुत ही जल्दी से आपको जॉब स्विच नहीं करना है, क्योंकि आजकल जेनजीज के प्रॉब्लम है कि आपने एक जॉब ली, आपको थोड़ा सा भी कुछ पसंद नहीं आया तो आपने जॉब चेंज करने की कोशिश की। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, उस चीज़ को अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे अपनी एक पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप फास्टर, जो कि मेरे पास जो रिज्यूमे आते हैं, मैं देखता हूँ कि कोई 6 मंथ्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके फिर वो मेरे पास आते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने 6 मंथ्स यहाँ पे टाइम दिया, अब आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आके क्या करना चाहेंगे, कितने आपका टाइम स्पेंड मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? कि नहीं सर काम करेंगे सर। तो मैंने कहा कितने दिन काम करेंगे, पहली ऑर्गेनाइजेशन आपने क्यों छोड़ी?
कि ग्रोथ के लिए। मैंने कहा हाउ यू विल डिफाइन द ग्रोथ, कैन यू क्वांटिफाई द ग्रोथ? तो नाउ डेज जेन जीज यंगस्टर्स आर अनेबल टू क्वांटिफाई द ग्रोथ. They want enormous growth. There is no problem in enormous growth, but you have to quantify first of all. And that's why Gen Zs are unhappy. See, mental health. Mental health is one of the main cause. Gen Zs are not caring about their mental health. They are seeking instant gratification. Instant gratification is going to disturb your mental health. तो आपको इस बात पे भी फोकस करना है. ये सब see, these are the life lessons. What I have learned in my organization for the last 22 years. Management books are telling you only to earn more and more money, earn few techniques, but life lessons तो तब आपको मिलेगा जब आप प्रैक्टिकली काम करने जाएंगे. और ये सब चैलेंजेस आपके सामने आएंगे जो हम लोग फेस करते हैं. तो रिज्यूमे मैंने आपको बताया कि यदि जो भी एम्प्लॉयर होगा वो आपसे पूछेंगे कि आपने 6 मंथ्स यहाँ पे टाइम दिया और 6 मंथ्स बाद आप मेरे भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देंगे, तो क्या मुझे आपको हायर करना चाहिए? तो ये यहाँ पे आपके हायर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये आपका जो प्रोफाइल है, वर्क प्रोफाइल है, वो एक नेगेटिव चीज़ है. तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें तो एटलीस्ट 2 साल 3 साल समय दें वहाँ पे, सो दैट जो नेक्स्ट आप जब चेंज करने की बात करें तो अगले एम्प्लॉयर को लगे कि नो, आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ रुकेंगे, कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में कुछ हेल्प करेंगे. तो इसके साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग क्वेश्चंस पूछें. आप लोगों के पास जो भी क्वेश्चंस हैं, यू आर मोस्ट वेलकम. एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू फाइनेंस एंड एनीथिंग. जी. As of now, we can see the situation of stock market, right? Yes. And when I'm talking about all the Gen Zs, so they are investing. Okay. And the time they are seeing these situations, like there is so much fluctuations, so they are just withdrawing their money. So what is the best we can do so that Right. Yes, madam, see, when you are going to invest in the stock market, you have to study something. Most of the people, it is very easy to buy shares in the stock market, but it is very tough to make money from the stock market. Most of the people in this country are very much adept and expert to buying something, but not making something. So first of all, we have to read few books about the stock market. If without reading few books about the stock market and without listening the advice of any expert, you are going to invest in stock market, then you are not going to make money. So this is my advice to all Gen Zs and youngster. You read few books. You are the MBA guys. You read few books, understand it, and have some patience, and try to seek the advice of any expert who is practicing in this market for the last 20 years, 10 years, 15 years, so that you can have an idea, and after that you will invest, and certainly you will make money. I hope I answered your question. Okay. Yes, please. Yes. You have mentioned that we need to be very much stable, right? Yes. When we are working in some organizations. So is there some average time or at least this much of we have to be contribute in this particular organization? Students generally ask, ma'am, I think 6 months is more than enough. One year is more than enough. So is there any criteria or quantitative term Sure. for this? Especially with these Gen Zs. They have a job hopping behavior. Yes. Very good question. Madam, please tell me your name. Dr. Pooja. Dr. Pooja asked a very, very appropriate question कि how many months you should contribute in a organization. Point is this, जब आप किसी मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आप ये सोचते हैं ना कि मुझे यहाँ पे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए. There are many management colleges in this country in Delhi, but you try to search a lot कि whether I should take admission in this college or not. Similarly, whenever you are going to join an organization, you should research little bit कि whether this organization is appropriate for me or not. If this organization is appropriate for me for long term, at least I can work in this organization for 2-3 years. If on your research and on your inquiry you are finding that this organization is not good, then you should not join the organization. Because once you have joined the organization, then you should stick with the organization. Otherwise, your next job probability will reduce. Because the employer will think that no, you are coming here for the job hopping, you will contribute 6 months, 3 months. And see, in any organization, whenever I'm employing somebody in my organization, we are spending a lot of money on them. We are giving training to them.
We are spending our resources to them, and after 6 months they are starting joining another job. Then the trust of an employer will break, and they will try to hire any newbody with more strict policy, more terms condition. This is not good. See, the things should run on the trust and relationship. See, I hope I answered. Another question, few more questions. Yes, please. Yes. Take the last question, and after that we'll. 2 questions, madam. If okay, sure, Aditi. सो सर जो बच्चे अकाउंट्स या फाइनेंस के बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, इट्स ओके, जो बच्चे अकाउंट्स और फाइनेंस के बैकग्राउंड से नहीं होते हैं एंड वो आगे जब फाइनेंस लेना चाहते हैं तो उनके लिए क्या करियर चैलेंजेस उन्हें फेस करना पड़ता है? ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो उनके लाइफ में या उनको आगे फेस करना पड़ेगा अगर वो फाइनेंस ऑप्ट करते हैं तो? Okay. So I will give the answer of this question 2 ways. You all guys know bureaucracy, IAS, IPS examination, UPSC examination. तो UPSC examination में क्या होता है कि they run the country. इंडिया के अभी थोड़े दिन पहले जो RBI गवर्नर थे ना, श्री शशिकांत दास जी, he was a pass out of history. He was masters in history, but he run the India's economy on a very good way. He managed the India's economy very well. तो जो यूपीएससी का जो एग्जाम होता है ना, उसका पैटर्न क्या होता है, उसमें आप किसी भी सब्जेक्ट लेके यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, एंड यू कैन बिकम एनी सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस, सेक्रेटरी ऑफ एक्सपेंडिचर, डिफेंस सेक्रेटरी, यू कैन बिकम एनीथिंग. तो एग्जामिनेशन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि यदि आपके पास टैलेंट है तो यू कैन डू एनीथिंग. तो टैलेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट. You are pass out in Sanskrit, you are pass out in Hindi, you are pass out in history, but once you will join the position, you will deliver. Similarly, you do not have background in finance, because I studied mathematics, I studied law, and after that I entered in the finance. So you have a basic talent, you have a basic qualities, you can master the skills of finance once you will start understanding and reading it. Okay, so no need to be discouraged. Whomsoever does not have a qualification in finance, doesn't know the finance, no problem. If you have जहाँ चाह है वहाँ राह है. तो यदि आप चाहेंगे कि फाइनेंस में मास्टरी हो जाए तो थोड़ी स्टडी करेंगे, थोड़ी कोशिश करेंगे, you will understand the nuances of finance. Okay. Any more question from anyone? Yes, please. This is the last one, please. सर, आपने अपनी पूरी स्पीचेस में आपने बताया था कि एथिक्स और रूल्स कितने इंपॉर्टेंट है. अगर हमको सेल्स करनी है, हमको रूल्स के अंदर, एथिक्स के अंदर करनी होंगी. लेकिन सर, जैसे कुछ पुरानी स्टैंडिंग जो कंपनीज है, जो आप कह सकते हैं हम कंजर्वेटिव रूल्स पे बनी है, उसमें अगर हम सेल्स बढ़ाने के लिए रूल्स को ब्रेक करते हैं लेकिन एथिक्स के अंदर रहते हैं, तो वो आपके हिसाब से कैसा रहेगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मुझे लगता है कि हम एथिकली काम करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे. लेकिन सर, कंपनी के रूल ब्रेक करना एथिक नहीं होगा. No. Just I'm coming to your question. You feel that if I will not break the rule of the company, then I will not able to grow the sales, right? Yes. You are saying like this? आप ऐसे ही बोल रहे हैं ना? This is not true. This is not true. See, whenever you are going to buy any product in the market, what you are buying? First of all, you are buying trust of the brand. Suppose that we are going to buy air conditioner. We will go in the market. The first preference will be Voltas AC of the Tatas. Because you feel that this is the trusted brand, they will certainly deliver. If you are delivering in a trusted way, you are delivering in an ethical way, you will reduce your sales time. Your sales will start increasing because you are a trustworthy brand. Initially, you will face some tough till there is no trust in the market. When the trust is there, you have generated the trust because of your product, because of your behavior, because of your consistency. Your sales is going to happen more frequently and you will cover the numbers. So do not break the trust. Do not break the trust and do not leave the ethical practices because this number under the pressure from your bosses. Stick with the trust, values, ethical numbers will automatically increase. Okay, done? Okay. Thank you so much, you all. आप सब लोगों ने बड़े अच्छे से सुना. Thank you so much.